Hello, dear friends. Again, very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated session for the pharmacology. Right now, we are starting our CNS pharmacology part. We have completed our autonomic nervous system. तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बाद अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करने वाले ड्रग्स के बारे में लर्न करते हैं. एंड हियर फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक द वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज that is the epilepsy and the drugs for the epilepsy. And already in our medicine classes we have taken the our medicine part where we have seen all the our description about the anti-epileptic management. So that medicine part you will get better understanding when you are dealing with the our pharmacology part. So this pharma and the medicine integration will be very beneficial for all of you. So this is the first class for the anti-epileptic drug. We will describe each and every drug from the very basics, from the physiology we will start, and then we will go for our pharma, then we will integrate with the patho and the medicine as well as surgery, and then we will see each and every MCQs which are asked in our different center institute exams like yes AIMS, INI-CET pattern, JIPMER, PGI Chandigarh. Also our next exam NEET pattern. Also you can solve the questions of the FMG and the our USMLE PLAB. Why? Because we are looking from the very basics to the top level. So all the kind of the aspect you can get benefit here. Okay, so right now we are going to start this epilepsy. So just try to understand what is the meaning of the seizure or epilepsy. So this is the first question which arises in our brain. So just taking a pic for you all, आपने अक्सर ये फिनोमिना देखा होगा. See here, either in childhood, in your surrounding, is all the things. There is a certain kind of the disease, okay, जिसमें abnormal central nervous system manifest होते हैं. The patient is having, yes, these are special kind of the patient, specific disease where abnormal CNS manifestations, or you can say abnormal central nervous system related clinical features are there. Yes, पेशेंट जो है वो चक्कर खा के गिर सकता है, पेशेंट जो है मेंटली कंफ्यूज रहता है, डिसओरिएंटेड हो जाता है, इवन कई बार डीप स्लीप में चला जाता है, कभी कभी ये कोमा और डेथ के प्रोसेस में भी जा सकता है. ओके, सो नाउ व्हाट यू कैन लुकिंग फर्दर. यस, मुंह से झाग निकलने चालू हो जाते हैं, फ्रॉदिंग, बहुत ज़्यादा कन्वर्जन होते हैं, मसल्स बहुत ज़्यादा स्पास्मोटिक हो जाते हैं. अगर जॉ के मसल, मैसेटर, ये सब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो जीभ अगर दांत के बीच आ गई तो जीभ कट करके बाहर निकल सकती है, टंग बाइट, और यू कैन से. ओके, सो यू कैन सी हियर इन दिस डिसीज टंग बाइट. ओके, also you can look, the patient will have the visual disturbance. ओके, और आप इस इमेज में देख रहे हैं there is a shaking of the hand, shaking of the body. okay, so different kind of the manifestations will be there. shaking और bend in body, पूरी बॉडी जो है वो जर्क करने लगती है, उसमें पूरी बॉडी ऐंठ जाती है, बैंड हो जाता है, क्योंकि इस डिसीज में बॉडी ऐंठ जाती है, बैंड हो जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कन्वल्स होना. कन्वल्स, ओके, बॉडी इन कन्वल्स स्टेट. इसीलिए इस बीमारी को हम लोकल लैंग्वेज में कन्वल्जन भी कहते हैं. ओके, यस, लोकल लैंग्वेज में इस कन्वर्जन को हम फिड्स भी कहते हैं. तो डिफरेंट काइंड ऑफ द टर्मिनोलॉजीज आर यूज्ड. गेटिंग द पॉइंट? सो वी आर गोइंग टू लुक व्हाट इज द सीजर, एपिलेप्सी, कन्वर्जन, फिट्स. सब एक दूसरे के जैसे हमें एपियर होते हैं, बट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस ऑल वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. यस, ये जो कंडीशन, इसे एपिलेप्सी, सीजर, कन्वर्जन, फिट्स या फिर लोकल लैंग्वेज में मिर्गी आना कहते हैं,
जिसमें आपने अक्सर सुना होगा मोजे सूंघाए जाते हैं, जूते सूंघाए जाते हैं, ऐसे और भी कई सारे डिशेज जिसमें ये सब चीज़ें की जाती है। यस, दिस ऑल आर जस्ट फॉल्स बिलीफ। ओके, तो इसमें हमको करना क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एपिलेप्सी और सीजर। फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये बीमारी है क्या। यस, हम एनाट फिजियो से कोरिलेट करते हैं। डू यू रिमेंबर आवर ब्रेन स्ट्रक्चर, सेंट्रल नर्व सिस्टम? ओके सर। डू यू रिमेंबर central sulcus was located just in between the frontal pole and the occipital pole, 5 centimeter behind to the central point between the frontal and occipital pole. ओके सर। और आपको याद है इस सेंट्रल सल्कस के आगे मोटर एरिया हुआ करता था, इसके पीछे सेंसरी एरिया हुआ करता था। ओके सर, आगे की बातें समझते हैं। सी हियर, ब्रेन वॉज लोकेटेड ओवर द अवर मिड ब्रेन, pons and then medulla. Yes sir, and then this medulla was continuing as our spinal cord. Okay sir, so this was continuing as the spinal cord. Fine. Now try to understand, अगर हमें हाथ में कॉन्ट्रेक्शन करना, सपोज दिस इज द हैंड, ओके, हाथ में अगर हमें उंगलियों को मोड़ना है या हाथ में कोई भी मूवमेंट करना है, तो ये मूवमेंट कैसे पॉसिबल है? सपोज दिस इज अवर वन पर्टिकुलर मसल, सपोज ये कोई मसल है, समझने के लिए। फाइन, तो ये मूवमेंट कैसे होता है? देयर इज द वन सर्टेन काइंड ऑफ द न्यूरॉन विच इज कमिंग फ्रॉम द मोटर एरिया। ओके सर, सपोज दिस इज द न्यूरॉन, इस न्यूरॉन से लंबा सा प्रोसेस निकला एक्सॉन। अब ये एक्सॉन जो है वो, यस, इट इज कमिंग डाउन थ्रू द अवर सेंट्रल नर्व सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, एंड देन इट इज रिलेइंग, ये रुक जाता है, इट इज मेकिंग द साइनेप्स विथ अनदर न्यूरॉन। डू यू रिमेंबर? यस, it is making the synapse with another neuron and then it is continuing for that particular muscle. yes, इस तरीके से न्यूरॉन में आप देखते हैं सेल बॉडी होता है और एक्सॉन्स होते हैं। अगर आपको फर्स्ट ईयर की चीजें याद आ रही होंगी तो हमने देखा था कि कलेक्शन ऑफ द आवर सेल बॉडी विद इन द सीएनएस नोन एज न्यूक्लियस, कलेक्शन ऑफ द एक्सॉन्स विद इन द सीएनएस नोन एज ट्रैक्ट, कलेक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्व सिस्टम विद इन द स्पाइनल कॉर्ड न्यूक्लियस। लेकिन अगर इसका कलेक्शन बाहर बन जाता है तो उसे हम गैंग्लियन कह रहे थे। ये एक तरीके से मैंने आपको ट्रैक्ट का टॉपिक ही बताया। फाइन, अब आपने विल किया कि हाथ में मूवमेंट करना है, तो इसके लिए आप कुछ सोचेंगे, ओके, एंड दैट विल कंट्रोल आवर, यस, मोटर एरिया। So try to understand what is this. This is just in front of the our central sulcus. This is our motor area. अब यहां पर जो न्यूरॉन है, यहां पर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा, एक्शन पोटेंशियल, यू नो एक्शन पोटेंशियल। तो यहां पर एक्शन पोटेंशियल चेंजेस हुए। व्हाट आई वांट टू टेल यू, यस, देयर आर आवर डिफरेंट एक्शन पोटेंशियल चेंजेस। ये न्यूरॉन एक्साइट हुआ, जैसे ये न्यूरॉन एक्साइट हुआ तो ये इंपल्स कंडक्ट करेगा, इट इज कैरिंग द इंपल्स टू द डाउन साइड। ओके सर, और अल्टीमेटली ये इंपल्स लोअर मोटर न्यूरॉन को एक्साइट करते हुए इस मसल में पहुंचा। अब ये मसल जो है वो एक्साइट हो गया। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एपिलेप्सी, क्योंकि अगर हम एपिलेप्सी का इडियोपैथोजेनेसिस समझ गए तो हमें इसे ठीक करने में देर नहीं लगेगी। जो जो चीज़ें हुई हैं उसका उल्टा करना है, वो दवाइयाँ देनी है और वो बीमारी ठीक हो जाएगी। So this muscle is showing the contraction. मसल में कॉन्ट्रेक्शन हुआ तो क्या हुआ? मूवमेंट। गेटिंग द पॉइंट? ओके सर, फाइन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें इस न्यूरॉन में क्या होगा? एबनॉर्मल, ओके, इलेक्ट्रिकल, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है। एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहाँ? ये सारी चीजें मैं आपको हैरिसन से बता रहा हूं। देयर इज द एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ सेरेब्रल न्यूरॉन। तो ब्रेन में जो न्यूरॉन है
उनमें एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुई, एबनॉर्मल एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुए। नॉर्मल नहीं, आपने सोचा ही नहीं है, आप बैठे हुए हैं, लेकिन ये न्यूरॉन जो है एक्साइट हो गए, और इसके कारण क्या हो रहा है, दैट इज रिजल्टिंग इन, यस इट इज it is resulting in, according to the Harrison 20th edition, yes, you can follow the page number 3050, okay, so it is resulting in our sudden, अचानक, एक्सेसिव, बहुत ज्यादा, ओके, एबनॉर्मल, यस ये नॉर्मल फिनोमिना नहीं है, एबनॉर्मल, ओके सर, और आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, पेशेंट विल बी अनेबल टू कंट्रोल इट, सो यू कैन से अनकंट्रोल। याद करने के लिए हम एक ट्रिक बना लेते हैं, ये चीजें अब आपको मेडिसिन में भी काम आएगी। व्हाट आई वांट टू टेल यू, यस दिस इज अवर SEA यू, सडन, एक्सेसिव, एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड, ओके, व्हाट आई एम टेलिंग यू, दैट इज अवर अनकंट्रोल्ड, यस, न्यूरॉनल डिस्चार्ज, न्यूरॉन से एबनॉर्मल डिस्चार्ज निकलने चालू हो गए, और इस एबनॉर्मल न्यूरॉनल डिस्चार्ज के कारण इस मसल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, बार बार रैपिड, सडन, एबनॉर्मल, एक्सेसिव, अनकंट्रोल डिस्चार्ज इस मसल के पास पहुंच रहे हैं, तो नॉर्मली एक इंपल्स पहुंचता था, मसल कांटेक्ट करता था, मूवमेंट शो होता था, बार बार तेजी से अगर इंपल्स पहुंचते रहेंगे तो ये मसल बार बार कांटेक्ट होते रहेंगे और रैपिड मूवमेंट होता रहेगा। गेटिंग द पॉइंट, so there is an abnormal jerky movement in the part of the body। अगर ऐसा हमारे ब्रेन के हर पार्ट के साथ होना चालू हो जाए तो हमारे बॉडी का हर पार्ट शेक करना चालू कर जाएगा, वी विल नॉट हैव द कंट्रोल, पूरे हेड, बॉडी, ट्रंक, लोअर लिम्ब, एवरी पार्ट इज जस्ट गेटिंग शेकिंग, ओके, दिस एबनॉर्मल शेकिंग इज आवर हेड्स, बॉडी जो रहती है वो मुड़ जाती, ऐट जाती है, आप देखेंगे कि पेशेंट जो है अजीब से पॉस्चर में, गाँवों में जब आप देखेंगे तो लोग इसको कह देते हैं भूत चढ़ गया है, इसे मोजा सिंघाओ, इसे जूते सुंघाओ, और उस आदमी में बहुत ताकत आ जाती है, उसे चार आदमी पकड़ते हैं, एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वो एक तरफ से ताकत लगाता है, चार आदमी को इधर फेंक देता है, चार आदमी को इधर फेंक देता है, और लोग कहते हैं उसे भूत चढ़ गया है। एक्चुअली ये भूत चढ़ना, ये सारी चीज़ें मिथोलॉजी हो जाती हैं, आपको पता होना चाहिए, दिस इज द सिंपल केस ऑफ द एपिलेप्सी, और इसमें जान जाने का भी डर रहता है। कुछ आपको नॉर्मल प्रिकॉशन याद रखने हैं, कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, और आप आदमी की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट देयर इज द एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन, सो व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट, न्यूरोनल डिस्चार्ज, दिस ऑल विल कॉज, इसके कारण क्या होगा, यस, विच कॉजेस एबनॉर्मल मूवमेंट्स, और इस एबनॉर्मल मूवमेंट को हम क्या कह रहे हैं, कन्वर्जन। क्यों हम कन्वर्जन कह रहे हैं, बिकॉज बॉडी गेट्स बैंड, शरीर जो रहता है वो मुड़ जाता है, आप बोल सकते हैं कन्वर्ज हो जाता है, इसलिए कन्वर्जन कहते हैं। नाउ अदर पॉइंट्स which will be useful for the pharma as well as medicine, it is characterized by रिकरेंट, बार बार होगा, ओके, डिसफंक्शन ऑफ व्हाट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, so it is characterized by the our recurrent dysfunction of the central nervous system that is known as, yes, सीजर, इसे हम कहते हैं सीजर। गेटिंग द पॉइंट, आगे की चीजें हम समझते हैं, यस, समझिए, अगर मान लो बार बार एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, यस, ब्रेन में एबनॉर्मल न्यूरोनल, कभी कभी ऐसा भी होता है नॉर्मल सिचुएशन में एक्साइट हुआ, कन्वर्जन आए, लेकिन आप ठीक हैं, ये नॉर्मली भी कभी कभी होते हैं, मायोक्लोनिक जर्क्स, मायोक्लोनस, ऐसा होता है, लेकिन अगर ये एबनॉर्मल रिकरेंट डिसफंक्शन है, ब्रेन के एबनॉर्मल सिम्टम्स के साथ ये आ रहा है, तब आप उसके सीजर कहेंगे। और फिर अब हम समझते हैं कि इपिलेप्सी क्या है। यस, व्हाट आई वांट टू टेल यू, व्हाट इज द सीजर, सडन, excessive, abnormal, uncontrolled neuronal discharge which are associated with the recurrent dysfunction of the our
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस मैनिफेस्टेशन रहेंगे, तब आप उसको सीजर कहेंगे। ओके, एंड नाउ सी हियर व्हाट इज द एपिलेप्सी। क्या एपिलेप्सी और सीजर एक ही चीजें हैं? ओके, सो व्हाट इज द एपिलेप्सी? ट्राई टू अंडरस्टैंड in easy way what are the different our differences. See here, सीजर, हम सीजर की बात करते हैं, सीजर को हम डिफाइन करते हैं, and also you can start your Harrison just after this pharmacology class also. Okay, so you can remember according to the our Harrison, okay, 20th edition, you can follow the our chapter 418 and our page number. Yes, ये सारे रेफरेंसेस आपको आगे काम आएंगे। 3050 आई एम शोइंग यू दिस अवर हैरिसन। So this is the Bible of the our medical science. Yes, can you follow here? Yes, chapter number 418 Caesar. Okay, you can look for the your page number in future, it will be very very useful. Yes, इसमें जो गाइडलाइन दे दी वो आपको फॉलो करना है, पेज नंबर 3050। तो हियर इट इज राइटिंग ऑल द थिंग्स। ओके, सीजर के बारे में ये पूरी चीजें लिख रहा है, एपिलेप्सी के बारे में ये पूरी चीजें लिख रहा है, और उसको हमने समराइज करते हुए अपने इस नोट्स में इंट्रोड्यूस किया है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू अकॉर्डिंग टू दिस रेफरेंस, what is the our seizure? This is our sudden excessive abnormal and uncontrolled neuronal activity in the brain, neuronal activity in brain. Okay, which causes, yes, अगला इंपॉर्टेंट लाइन, causing ट्रांजिएंट ऑकरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम, थोड़े समय के लिए कुछ एबनॉर्मल मैनिफेस्टेशन ये देता है, ट्रांजिएंट, causing transient occurrence of sign and symptoms. Okay, so this situation is known as seizure. Okay sir, fine. अब हम लर्न करते हैं, सर सीजर तो समझ में आ गया, what is the epilepsy? So now focus for the our epilepsy. Yes, we are going to look for the epilepsy. What is the our epilepsy? So according to the Harrison, again, more than or equal to 2 unprovoked seizure. Yes, इसका क्या मतलब है? Unprovoked, यानी कि आपने स्टिमुलेट नहीं किया, ये ऑटोमेटिक हुआ है। तो अगर मान लो एक से ज्यादा बार सीजर आ रहा है, अब वो 2 बार आ सकता है, 4 बार आ सकता है, 8 बार, 10 बार, कितने भी बार, लेकिन अगर किसी पेशेंट में एक बार से ज्यादा अगर मान लो सीजर आ रहा है, ओके, देन इट इज नोन एज एपिलेप्सी। तो इन सिंपल वर्ड यू कैन से दैट recurrent attacks of seizure known as epilepsy, known as epilepsy. Getting the point? तो ये सिंपल वर्ड है जो आप याद रख सकते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अक्सर आप कुछ नॉन मेडिकल टर्म भी सुनेंगे, तो दीज आर द अवर डिफरेंट पॉइंट्स। यस, हमने सीजर लर्न किया, हमने एपिलेप्सी लर्न किया। नाउ सी हियर, यू विल लुक द अदर टर्मिनोलॉजी ऑल्सो। तो कई सारे कंफ्यूजिंग टर्म्स आपको सुनने के लिए, देखने के लिए मिलते रहेंगे। सो जस्ट लुक हियर, व्हाट इज द हिस्टीरिया? हिस्टीरिया भी इसके जैसा मिलता जुलता टर्म है। व्हाट इज द अवर कन्वर्जन? मैंने आपको कन्वर्जन के बारे में बताया।
what is the our fit or fits, what is the our seizure, and what is the our epilepsy, दिस ऑल द थिंग्स। तो समझने की कोशिश कीजिए, हिस्टीरिया को ही हम कन्वर्जन कहते हैं, कन्वर्जन ही लगभग फिट्स के बराबर है और फिट्स ही लगभग सीजर के बराबर है। और जब ये सीजर रिकरेंट अटैक के साथ आता है, मोर देन वन अटैक ऑफ द सीजर, और यू कैन मेंशन इफ देयर इज अवर रिकरेंट अटैक्स ऑफ सीजर, तब आप उसे क्या कहते हैं, एपिलेप्सी। बार बार सीजर आना ही एपिलेप्सी है। गेटिंग द पॉइंट? समझने के लिए, हम डॉक्टर हैं, मेडिकल फील्ड के हैं, याद रखेंगे दिस सीजर एंड एपिलेप्सी ये डॉक्टर्स यूज करते हैं। यस, दीज आर आवर मेडिकल टर्म्स। गेटिंग द पॉइंट? While this hysteria, convulsion and fit, these are layman language, ये नॉन मेडिकल टर्म है, नॉन मेडिकल टर्म। गेटिंग द पॉइंट? यस, hysteria, convulsion, fit, they all are same, seizure and epilepsy, they are with the same profession। गेटिंग द पॉइंट? यस। इस hysteria वर्ड की भी एक कहानी है, तो कुछ चीजें जो आपको हमेशा याद रहे, इस हिस्टीरिया वर्ड की क्या कहानी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन। ये जो हिस्टीरिया वर्ड है, इट इंडिकेट्स यूटेरस। गेटिंग द पॉइंट? तो यूटेरस जो होता है उसका मतलब होता है आपका हिस्टीरिया। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको याद है हमने एक वर्ड पढ़ा था एनाटमी में, हम ऑप्स गायनी में देखेंगे, हिस्टेरो सेल्पिंगोग्राफी। ओके सर, हिस्टेरो का मतलब क्या होता है, यूटेरस। सेल्पिंगो का क्या मतलब होता है, यस, फैलोपियन ट्यूब। आपने एनाट में इसे देखा था। ओके, और ग्राफी मीन्स डेफिनेटली विजुअलाइजेशन। तो ये एक्सरे का एक मेथड था जिसमें हम डाई यूज करके, यस, हिस्टेरो सेल्पिंगोग्राफी डाई यूज करके हम पेटेंसी ऑफ द यूटेराइन ट्रैक्ट, पेटेंसी ऑफ द अवर यूटेराइन ट्यूब, इन सारी चीजों को देखते हैं। तो सर हिस्टीरिया और हिस्टेरोसेल्पिंगोग्राफी का क्या कोई रिलेशन है? यस, सी हियर, दिस इज अवर हिस्टेरोसेल्पिंगोग्राफी, जिसमें आप वेजाइना के थ्रू, HSG हम इसे कहा करते थे, वेजाइना के अंदर डाई डालते थे और ये डाई फिर फैलोपियन ट्यूब के थ्रू होते हुए हर जगह स्प्रेड हो जाती थी। गेटिंग द पॉइंट? ओके, तो इसका क्या रिलेशन है, सी हियर, एक मिथोलॉजी है। व्हाट इज द अवर मिथोलॉजी स्टोरी? यस, हिस्टीरिया वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द अवर यूटेरस। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द अवर स्टोरी बिहाइंड इट। ऐसा माना जाता था कि देखा गया कि ये जो हिस्टीरिया की बीमारी है वो यंग फीमेल में ज़्यादा होती थी, यंग फीमेल, अनमैरिड फीमेल, इनमें ये ज़्यादा देखने के लिए मिलता था। तो ऐसा देखा गया कि शादी के बाद या प्रेगनेंसी के बाद हिस्टीरिया की जो इंसिडेंट्स होते थे वो कम हो जाते थे। तो एक मिथोलॉजी बन गई कि फीमेल बॉडी में कोई ऑर्गन है जो ब्लड के साथ सर्कुलेट होते रहता है, जब वो ब्रेन में पहुंच जाता है ब्लड सर्कुलेशन के साथ, बहुत पहले की बात है जब मेडिकल साइंस डेवलप नहीं हुआ था, तो ब्रेन को एबनॉर्मली एक्साइट कर देने के कारण पूरे बॉडी में शेकिंग होती थी। क्योंकि ये बीमारी हिस्टीरिया यूटेरस के कारण प्रेसिपिटेट होती थी, इसलिए इसे हिस्टीरिया दिया गया। गलत नाम है, मिसनॉमर है। प्रेगनेंसी के बाद ये जो ऑर्गन है वो एब्डोमेन के लोअर पार्ट में फिक्स हो जाता है, इसलिए यूटेरस को हिस्टीरिया टर्म दिया गया है। हिस्टेरो मीन्स यूटेरस, और इस हिस्टेरो के कारण जो डिसीज प्रेसिपिटेट होती थी उसे कहा गया, यस, हिस्टीरिया। प्रेगनेंसी के बाद ये एब्डोमेन के लोअर पार्ट में फिक्स हो जाता है। देखा गया कि प्रेगनेंसी के बाद में इसकी इंसिडेंस कम हो जाते हैं, इसलिए ऐसा नाम दिया गया। लेकिन ये मिथोलॉजी है, ये गलत है। ओके, सो आई जस्ट टोल्ड यू द डिफरेंट टर्मिनोलॉजी विच आर रिलेटेड विथ अवर
epilepsy. Fine. So now we are going to look for the our different more things. Yes, see here in our hysteria, this all are the different pathology. सर क्यों पढ़ा हमने, ऐसा क्यों पढ़ा, एक एक करके अब इसका ट्रीटमेंट हम चालू करते हैं. जस्ट एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं जिससे आपको इसका जो फार्मा वाला पार्ट, अगेन आई वांट टू टेल यू, सीएनएस सिर्फ फिजियोलॉजी में डिफिकल्ट नहीं है, सीएनएस सिर्फ आपके न्यूरो एनाट में डिफिकल्ट नहीं है, सेंट्रल नर्व सिस्टम आपके फार्मा में, आपके पैथो में, आपके मेडिसिन में, आपके सर्जरी में, हर जगह डिफिकल्ट रहेगा. तो रीड वेरी कॉशियसली, रीड विथ वेरी केयरफुल नेचर टू दिस सेंट्रल नर्व सिस्टम. ओके, तो अगर आपको ये इटियोपैथोलॉजी समझ में आती है तो अब आप बता सकते हैं कि आप इपिलेप्सी को कैसे ठीक कर सकते हैं. एक कॉमन सेंस हम यूज करते हैं. सी हियर, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल डिस्चार्ज होने के कारण पूरे बॉडी में इस तरीके की शेकिंग हो रही है, तो आप क्या करेंगे, आपको इस न्यूरॉन के एक्साइटेशन को बंद करना है. अगर आपको फिजियोलॉजी याद हो, न्यूरॉन एक्साइट कैसे होता है, सोडियम पोटेशियम के कारण. डू यू रिमेंबर, सोडियम का जब इन्फ्लक्स होता था तब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता था. एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होता था तो वो इंपल्स को आगे कैरी करता था. और द पॉइंट बेटा, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू इनहिबिट दिस न्यूरॉन्स, यू हैव टू इनहिबिट दिस न्यूरॉन्स. तो इसके लिए सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दो, पहली चीज. तो वी विल सी द ड्रग्स which will cause the prolonged opening of the sodium channel. Yes, see here, now we are coming to the our pharmacology. Yes, our KDT. So just we are going to talk about our pharma book, KDT. Yes, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, इसमें भी एपिलेप्सी के बारे में दिया हुआ है शॉर्ट एंड स्वीट में. इन कई सारी चीज़ समझ में नहीं आती इसलिए हमने इसको डिस्क्राइब किया. फिर हम इसका क्लासिफिकेशन भी देखेंगे. एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, इसका बहुत बढ़िया ट्रिक देखेंगे कैसे इस डिफिकल्ट चीज़ को हम शेक्सपियर के थ्रू याद कर सके. ओके, हम इसको एक बहुत बढ़िया फनी ट्रिक क्रिएट करेंगे. यस, शार्लक होम्स, शेक्सपियर, इनके थ्रू हम इसको याद करेंगे, ट्रिक हम बनाएंगे. एंड ऑल्सो सी दिस टेबल, you can follow the पेज नंबर 440 इस पर्टिकुलर डायग्राम. ओके, तो ये हमारा ब्रेन का न्यूरॉन है. मैंने आपको रॉबिन्स की क्लास में भी बताया है, फॉस्फेट लिपिड, लिपिड फॉस्फेट. तो ये हमारा न्यूरॉन का सेल मेम्ब्रेन है. अब इसमें कई सारे रेसेप्टर हैं. कैन यू सी द सोडियम चैनल. यस, सोडियम चैनल तो हर टिश्यू में पाया जाएगा, चाहे वो न्यूरॉन हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो आपका नॉर्मल सेल हो. तो आपको क्या करना है, सोडियम की जब एंट्री होती है तब न्यूरॉन एक्साइट होता है, न्यूरॉन जब एक्साइट होता है तब कॉन्ट्रैक्शन होते हैं. एबनॉर्मल एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ द न्यूरॉन्स, दे आर कॉजिंग द एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज द रिलैक्सेशन ऑफ द मसल एंड देयर इज अ शेकिंग, इपिलेप्सी, जर्क. ओके, तो आपको क्या करना है, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देना है. तो ऐसी कौन कौन सी दवाइयां हैं जो सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगी या फिर उसकी इनएक्टिवेशन के फेज को प्रोलॉन्ग कर देगी, हम पढ़ेंगे. अब यहां से हमारा फार्मा चालू होता है. फेनेटोइन, कार्बेमाजेपिन, यस, वाल्प्रोएट, लैमोट्राइजिन, टोपिरामेट, जॉन ईसामाइड एंड लैकोसामाइड. तो हम इन लोगों को फनी वे में याद करेंगे. फेनी, यस, फेनीटॉइन, फेनी, काजू का एक जूस आता है, फेनी हम कहते हैं. यस, ड्रिंक आते हैं, फेनी हम बोलते हैं. टॉइन जोड़ देना है. कार्ब, अम्मा, जिप, इन. तो अम्मा जो है वो कार्बन पेपर में आई. ओके, कार्ब, अम्मा, फिर जिप आया और कार्बन पेपर के साथ अम्मा जो है जिप के अंदर चली गई. इन अ फनी वे, कार्ब, अम्मा, जिप, इन, कार्बेमाजेपिन. और अगर आपको ट्राइजेमानल न्यूरेल्जिया हमारी न्यूरो एनाट की क्लासेस याद हो तो मैंने आपको बताया था द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द आवर, यस, ट्राइजेमानल न्यूरेल्जिया, ये वही ड्रग है, कार्बेमाजेपिन. और सेकंड चॉइस ऑफ द आवर ट्राइजेमानल न्यूरेल्जिया, वाल्प्रोइक एसिड. आपको याद आया बेटा, ट्राइजेमानल न्यूरेल्जिया न्यूरो एनाट की क्लास में हमने कई बार इन चीजों को देखा था. अगला लैमोट्राइजिन, लंबा ट्राइजीन, 3 जीन हैं जो बहुत लंबे हैं. लैमो कुछ भी आप बना सकते हैं. यस, टोप इरामेट, टॉपिरामेट, जॉन ईसामाइड, जॉन ईसामाइड, एंड यू कैन रिमेंबर द ब्रदर ऑफ द जॉन ईसामाइड, दैट इज अ लाकुसामाइड, लैकोसामाइड. ओके, और हम देखते हैं क्योंकि ब्रेन जो है बहुत ज्यादा एक्साइट हो गया है.
यस सर, ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा है। तो आपको याद है, फिर से फिजियोलॉजी में चलो बेटा, बिना फिजियो एनाट के फार्मा पैथो कोई सब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ब्रेन को एक्साइट कौन करता है, कोई भी सेल को एक्साइट कौन करता है, सोडियम। तो आप एक काम करो ना, इनहिबिट कर दो। सोडियम का इन्फ्लक्स होता था, पॉजिटिव आयन आते हैं तो एक्साइट होता है, तो अगर आप नेगेटिव आयन को अंदर ले आओगे तो न्यूरॉन इनहिबिट हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो आपको याद है कौन सा हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर था? यस, वन एंड ओनली गाबा, गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड। बायोकेमिस्ट्री इंटीग्रेशन, यस, ब्यूटारिक एसिड कि गाबा पोजीशन में, कि है ना, गामा पोजीशन में, यस, वी वेयर एडिंग द अवर एमाइनो ग्रुप। तो इसे हम क्या कहते हैं? गामा एमाइनो ब्यूटरिक एसिड, जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर था, अपने गाबा रिसेप्टर से जुड़ेगा और क्लोराइड को अंदर ले जाएगा। क्लोराइड अंदर गया तो हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा, न्यूरॉन जो एक्साइट था इनहिबिट हो जाएगा। तो ऐसी कौन कौन सी दवाइयां हैं जो गाबा चैनल को स्टिमुलेट करेंगी? बेंजोडाइजेपिन, यस, बारबिचूरिक एसिड, गेटिंग द पॉइंट, बेंजोडाइजेपिन, बारबिचूरिक एसिड, ऐसी कई सारी दवाइयां हैं जो हमारे इस सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगी। गेटिंग द पॉइंट? सो इट इज गेटिंग एक्साइटेड, हमारा जो गाबा रिसेप्टर है वो एक्साइट हुआ, और गाबा रिसेप्टर एक्साइट होने क्लोराइड के अंदर एंट्री हुई, हाइपरपोलराइजेशन हो गया। कौन सी दवाइयां हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द सेंट्रल सिस्टम, फॉर एंटायर फार्मेकोलॉजी, बारबिचूरेट। कल ही जब मैंने जनरल फार्मा की क्लास ली तो आप लोगों को बताया बारबिचूरिक एसिड, एसिड है, जो एसिड है वो बेस के साथ बाइंड होगा। बेस कौन है? यस, बेस अवर, डू यू रिमेंबर, वी हैव सीन अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, तो जो एसिडिक ड्रग होते हैं वो बेस के साथ, ये एल्बुमिन के साथ बाइंड होगा, और जो बेसिक ड्रग होते हैं वो अल्फा 1 अवर ग्लाइकोप्रोटीन उनके साथ बाइंड होता है, क्योंकि ये एसिड है, बारबिचूरिक एसिड, तो ये एल्बुमिन के साथ बाइंड होता है। इसी तरीके से बेंजोडाइजेपिन, वाइगा बैट्रिन, तो हम याद करेंगे इसका साइड इफेक्ट, वाइगा, वी आई आया, ये विजुअल साइड इफेक्ट करेगा। गाबा, ये गाबा रिसेप्टर पर काम करता है, टी आर से याद रखना ट्रांस एमिनेज, आई एन से याद रखना इनहिबिटर। तो सारी चीजें ट्रिक में भी चलेंगी, कॉन्सेप्ट में चलेगी। सो दिस इज द वाइगा बैट्रिन। वैसे ही वॉल्प्रोएट, गाबा पेंटिन, गाबा पेन टिन, ऐसा हम याद रखेंगे, गाबा पेन टिन। और इसी तरीके से टाइगाबाइन, तो यू नो द वेरियस थिंग्स, टाइगर, टाइगर जो है वो बिन रहा है, वो कुछ चुन रहा है, सो दिस इज द टाइगर बाइन। तो इस तरीके से हम ड्रग्स के नाम को याद करेंगे। और लास्ट में, यस, सी हियर, हमारे हाइपोथैलेमस में स्पेशल चैनल होते कैल्शियम के। तो अगर मान लो हम ये कैल्शियम के चैनल को इनहिबिट कर दें, अगर हम कैल्शियम के चैनल को इनहिबिट कर दें तो हाइपोथैलेमस, थैलेमस, बेटर टू से थैलेमस, थैलेमस से जो इपिलेप्सी का ओरिजिन होता है वो सारी चीजें इनहिबिट हो जाती है। इसमें हम याद करेंगे इथोसक्सामाइड, वॉल्प्रोएट और जॉनिसामाइड। आपका बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन आता है कि कौन सा ड्रग है जो सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है? कैन यू सी वॉल्प्रोएट? यस, कैन यू सी द वॉल्प्रोएट? यस सर, कैन यू सी अवर वॉल्प्रोएट हियर? ओके, और इसी तरीके से एक्साइटेटरी ग्लूटामिनर्जिक साइनेप्स, इसको भी इनहिबिट करने वाले कई सारे ड्रग है। यहां पर भी आप देख रहे हैं वॉल्प्रोएट, एक्साइटेशन जो न्यूरॉन का करते हैं उसको इनहिबिट करना है, तो इसमें फिनोबार्बिटॉन, फेनिटोइन, ओके, लैमोट्राइजिन, टॉपिरामेट, वाल्प्रोएट, लिव तेरा सितम, ओके, लिव तेरा सितम। हैव यू हर्ड द मेनी बॉलीवुड सॉन्ग्स? ओके, कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम, समथिंग लाइक दैट, ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग। ओके, सितम, ओके, परेशान करना मतलब सितम। ओके, सो लीव तेरा सितम, तेरी परेशानी को हम छोड़ देंगे, हम उससे दूर चले जाएंगे, लीव तेरा सितम। सो यू कैन रिमेंबर इन दिस फनी वे, लेव इट तेरा सितम। ओके, सो वी विल रिमेंबर दिस ऑल द थिंग्स वन बाय वन। ओके सर, तो अगर आपकी ईटियोपैथोलॉजी क्लियर है तो आप ये सारी चीजें बहुत आसानी से डील कर सकते हैं। बट नाउ वी आर गोइंग टू लुक फॉर द अवर फर्दर थिंग्स। इसके बहुत सारे ईटियोपैथोजेनेसिस भी हैं, बट वी विल सी इन अवर मेडिसिन क्लास। जस्ट आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस टू ऑल ऑफ यू, हमारी मेडिसिन की क्लासेस भी चल रही, जैसे जैसे आप 3 महीने बाद ही आपकी हम मेडिसिन की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज यू ऑल विल बी एबल टू लुक फॉर दैट। ऑलरेडी मेडिसिन की क्लासेस चल रही हैं, देयर यू कैन सी अवर दिस ऑल द रेफरेंसेस from the Harrison. Yes, see here, this is our Harrison based
मेडिसिन, जहाँ पर हम एपिलेप्सी को समझ रहे हैं, वही बेसिक चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। और फिर फोकल सीजर, जनरलाइज सीजर, ये अभी हम लर्न करने जा रहे हैं। ये फोकल सीजर क्या है, जनरलाइज सीजर क्या है, इसको हम देखेंगे। ये हैरिसन के बेसिस में फोकल सीजर, जनरलाइज सीजर, इसके दो टाइप होते हैं। सो दीज ऑल द क्लासेस आर रनिंग। ईईजी के बारे में भी हमने लर्न किया, किस तरीके से ईईजी करते हैं। सो दिस ऑल द थिंग्स, ओके। एंड व्हाट आर द डिफरेंट टर्मोलॉजी। अभी इसमें आपका एक जैक्सोनियन मार्च आता है, तो माइकल जैक्सन की तरह हम जैक्सोनियन मार्च को याद करेंगे, जिसमें एबनॉर्मल मूवमेंट होते हैं। सो दिस ऑल आर द मेडिसिन क्लासेस, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट क्लासेस इन फ्यूचर, बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू लुक फॉर द अवर फार्मेकोलॉजी पार्ट। सो जस्ट सी हियर। और बेटा जब भी क्लास हो रही है तो आप टेक्स्ट बुक को सामने ओपन रखेंगे, okay. So now after this introduction to the our this particular part, we are going to look for the our classification, okay. So now we are going to look for the our classification in simple and easy way. So how you can divide, क्योंकि जब तक हम इसके टाइप्स नहीं समझेंगे, हमें सीजर का ट्रीटमेंट, एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट नहीं समझ में आएगा। तो वी आर लुकिंग फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सीजर। और बार बार अगर सीजर आता है तो इसे ही हम क्या कह दे रहे हैं, वी आर सेइंग द एपिलेप्सी, ओके। सो व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड हियर, यस। हम सीजर को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट में। पहला पार्शियल सीजर, और दूसरा हम कहेंगे जनरलाइज्ड सीजर, ओके। तो सर ये पार्शियल और जनरलाइज्ड सीजर क्या होता है, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू लुक फॉर दिस। सी हियर, व्हाट इज अ पार्शियल सीजर। इफ part of the brain is only stimulated, if only part of brain is excited, or you can say part of the brain or few neurons are getting excitation, getting the point। तो इस सिचुएशन में आप क्या कहेंगे, पार्शियल सीजर। और अगर मान लो पूरा का पूरा ब्रेन एक्साइट होगा, व्हाट आई वांट टू टेल यू, यस, इफ आवर होल ब्रेन, पूरा ब्रेन एक्साइट हो रहा है, या फिर बहुत सारे न्यूरॉन्स एक साथ एक्साइट हो रहे हैं, इज स्टिमुलेटेड, ओके, देन इट इज नोन एज जनरलाइज्ड सीजर। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो सीजर को आपको दो पार्ट में समझना है, एक पार्शियल और दूसरा जनरलाइज्ड सीजर, ओके सर। नाउ अकॉर्डिंग टू द अवर हैरिसन पार्शियल सीजर, सी हियर, एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम करते हैं। सपोज दिस इज अवर ब्रेन, फाइन सर, ये ब्रेन है, सेंट्रल सर्कस है। अगर मान लो कुछ ही न्यूरॉन एक्साइट हो रहे हैं, वन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स आर गेटिंग एक्साइटेड, ओके। सो इन दैट सिचुएशन कुछ ही बॉडी पार्ट जो है वो एबनॉर्मली मूव करेंगे। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू, अकॉर्डिंग टू द अवर हैरिसन, यस, हैरिसन 20th एडिशन, ये कहता है अगर मान लो कोई सीजर फोकल ऑनसेट हो, ब्रेन का कोई पर्टिकुलर पार्ट है उसमें बस आपको एक्साइटमेंट देखने के लिए मिल रहा है, तो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, सिम्टम्स एट फ्यू बॉडी पार्ट्स, यस, सिम्टम्स appear at few parts of body। मतलब आप कह सकते हैं फोकल सिम्टम्स आ रहे हैं, ओके। सो यू कैन से द फोकल सिम्टम्स, फोकल सिम्टम मतलब रेस्ट्रिक्टेड पार्ट में ही आपको देखने के लिए मिल रहा है। आगे की चीज, दो सिचुएशन हो सकता है, यस, अगर मान लो पेशेंट होश में है या फिर पेशेंट होश में नहीं है, तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, इफ पेशेंट इज कॉन्शियस एंड इफ पेशेंट
इज अनकॉन्शियस, दो सिचुएशन हो सकते हैं। अगर पेशेंट होश में है, कॉन्शियस है, तो ऐसे कंडीशन में हम इस सीजर को कहेंगे सिंपल पार्शियल सीजर। यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज अवर सिंपल पार्शियल सीजर। तो शॉर्ट में अब सिंपल पार्शियल सीजर को हम एसपीएस से शो करेंगे, इसको हम कहेंगे एसपीएस। यस, सिंपल पार्शियल सीजर, गेटिंग द पॉइंट। और अगर मान लो पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया, तब हम इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, शॉर्ट में हम कहते हैं सीपीएस। यस, दिस इज अवर कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, CPS, getting the point? Now try to understand in this all the kind, दोनों ही तरीके में आप लर्न करेंगे in the both types, the part of the body is involved, not the complete body. Yes, only part of body is involved. Okay, means it is restricted, it is focal in nature, getting the point? So this is our complete description of the partial seizure, क्योंकि part of the body में इसलिए partial बोल रहे हैं। According to the Harrison we have seen, according to the your KDT we have seen. Now see here, generalized seizure. Okay, we are going to talk about the our generalized seizure. Again, according to the our medicine Harrison, the god for the our MD मेडिसिन स्टूडेंट्स, आपको किसको फॉलो करना है? हैरिसन को। और भी कई सारे टेक्स्ट बुक है इन ओवरऑल, क्योंकि इस बुक का एक एक चैप्टर जो है वर्ल्ड के जो सबसे बेस्ट डॉक्टर्स होते हैं वो लिखते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि पूरी बुक एक ऑथर के थ्रू लिखी जा रही है, एक एक चैप्टर सबसे बेस्ट डॉक्टर लिख रहे हैं। ओके, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट अकॉर्डिंग टू द आवर हैरिसन, व्हाट इज द आवर जनरलाइज्ड सीजर? सी हियर, दिस इज आवर ब्रेन। Okay sir, here is our central sulcus, fine sir, and the neurons are getting excited. See here, यहाँ पर एक पार्ट में ही एक्साइटेशन हुआ था, लेकिन अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे that every part of the brain is getting excited. So what you will observe, every part of the brain is getting excited, so the neurons are stimulated at each and every part of the brain, getting the point? So if there is the excitation of the neuron from each and every part of the brain, then what the term you will use? You will use the term generalized onset. Yes, this is the specific term, जनरलाइज्ड ऑनसेट। और अगर मान लो जनरलाइज्ड ऑनसेट है तो उस सिचुएशन में इम्पल्स जो है वो हमारे बॉडी के हर पार्ट में डिफ्यूज होगा। Okay, so what you will say, the symptoms appear at many parts of body, in general पूरे बॉडी में एक्साइट होगा, पूरे बॉडी में एपियर होगा, so you will say generalized seizure, getting the point? These are the our nomenclature and understanding of this seizure. Okay, so now try to understand the classification of the seizure. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सीजर के कौन कौन से टाइप हैं। कैन यू सी हियर, इंक्लूडिंग द लाइंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, जनरलाइज्ड सीजर। यस, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये गलत है जो आपकी केडीटी में दिया हुआ। क्यों? क्योंकि हैरिसन 20th एडिशन ने क्लासिफिकेशन को चेंज कर दिया है। ओके, बट इवन देन वी विल फॉलो दिस ऑल द थिंग्स फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन याद रखेंगे हैरिसन की बुक जो कह रही है वो आपको फॉलो करना है। Okay, so we will look this our old classification, but I will tell you the new classification also according to the our Harrison. और यहीं पर प्रॉब्लम होती है जब हम सेंट्रल इंस्टीट्यूट एग्जाम में जाते हैं, वहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ द आवर
सीजर। ओके, और हम बोलेंगे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने कई बार पढ़ा है और हम उसका आंसर लिख करके आ जाते हैं, लेकिन सेंट्रल इंस्टीट्यूट एग्जाम कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो यूं ही नहीं पूछता, जरूर उसमें कोई राज की बात है, उसमें कुछ अपडेट्स हैं जो नॉर्मली हम लोगों को पता नहीं रहते। तो दिस इज एक्चुअली आवर ओल्ड क्लासिफिकेशन, रिमेंबर द KDT is saying about our old classification, but even we can go through it. What is the correct new classification I will tell you later, लेकिन इस old classification के according आप देख रहे हैं generalized seizure, okay sir, and there is our partial seizure. What is a generalized seizure? I told you the seizure which occurs at all the parts of the body. Okay, yes, involves all parts of body. इसमें भी आपको कुछ एक्सेप्शन देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए जनरली टर्म हम यूज कर रहे हैं। ओके, सो यू कैन सी द जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर, और इसे हम कहते हैं GTCS। ये आपको जरूर याद रखना है। जनरलाइज्ड मतलब ऑल ओवर द बॉडी, टोनिक क्लोनिक आपको पता है, टोनिक टोन हाइपरटोनिया, तो इस कंडीशन में मसल कांटेक्ट होती है, टोन बढ़ जाता है, कड़ा हो जाता है, टोनिक क्लोनिक। फिर उसके बाद मसल्स जो है वो जर्क करते हैं, ओके, एब नॉर्मल यू नो पेंडुलर जर्की मूवमेंट नोन एज द क्लोनस। तो हाथ पर कड़े हो जाएंगे, फिर वो जर्क करेंगे, फिर हाथ पर कड़े हो जाएंगे, फिर जर्क करेंगे। ओके, सो देर इज द कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन इज ऑल द फेस। तो दैट इज अवर जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर। और आपका टेक्स्ट बुक कहता है कि इसमें आप देखेंगे 1 से 2 मिनट के लिए पेशेंट में सिम्टम्स आते हैं, और इसे हम मेजर एपिलेप्सी भी कहते हैं, क्योंकि इसे पूरा बॉडी इन्वॉल्व होता है। ओके, नाउ यू कैन सी इसमें आपको सबसे पहले ऑरा नजर आएगा, फिर पेशेंट चिल्लाना चालू करता है, फिर अनकॉन्शियस हो जाता है, और फिर उसके बाद पेशेंट गिर जाता है, फिर पूरे बॉडी में टोनिक स्पाज्म होते हैं, और इसके साथ में क्लोनिक जर्किंग होती है, फिर पेशेंट को नींद आ जाती है, और फिर डिप्रेशन ऑफ द ऑल द सीनस फंक्शन, पेशेंट नींद में चला जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑल द थिंग। बहुत सिंपल स्वीट वर्ड में KDT ने भी डिस्क्राइब किया हुआ ऑरा। ऑरा का क्या मतलब है? कोई भी ऐसा फैक्टर जिसके कारण एपिलेप्सी प्रेसिपिटेट होती है उसको हम ऑरा कहते हैं। जैसे कि सपोज मुझे एपिलेप्सी है, मैं बाहर गया, धूल में डस्ट में एलर्जी में गया, ओके, तो मुझे सीजर प्रेसिपिटेट हो गया, ओके, या फिर आंख के सामने लाइट तेजी से चमकी, मुझे अंधेरा अंधेरा लगा, ओके। So before the seizure, just before the seizure, whatever the abnormal symptoms are felt by the patient, they are known as aura. Okay? कुछ लोगों को तेज आवाज के कारण, कुछ लोगों को लाइट के कारण, कुछ लोगों को डस्ट के कारण, एलर्जी के कारण, ऐसी कई सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस ऑल आर द थिंग्स। तो जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर कैसे रहेगा? व्हाट यू हैव टू रिमेंबर दैट, सी हियर, यू विल ऑब्जर्व एक पेशेंट है, उस पेशेंट को अचानक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हुआ, और भी कई सारी चीज़ें, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया, CNS इन्फेक्शन, इन सभी चीज़ों के कारण ऑरा हुआ, फिर वो पेशेंट चिल्लाना चालू कर दिया, ओके, और फिर उस पेशेंट में धीरे धीरे अदर सिक्वेंशियल सिम्टम्स आते चले गए। यस, वो पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, लॉस ऑफ ओरिएंटेशन, ऑल द थिंग्स, फिर वो अचानक गिर जाएगा, पूरी बॉडी जो है वो कड़ी हो जाएगी, टोन डेवलप हो जाएगा, बहुत कड़ा हो जाएगा, और फिर उसके बाद में सारे मसल में जर्क डेवलप हो जाते हैं। पहले कड़ा हो गया, हाथ पर बहुत टाइट हो गया, टोन डेवलप हो गया, टोनस। देन क्लोनस फेस, क्लोनस फेस मींस यू कैन से देयर इज द पेंडुलर जर्की मूवमेंट, और इसके साथ में पेशेंट जो है वो नींद में चला गया, प्रोलॉन्ग्ड स्लीप, और उसके बाद वो उसका ब्रेन जो है पहले बहुत एक्साइट हो गया था, फिर डिप्रेस हो गया। गेटिंग द पॉइंट? So this is our generalized tonic clonic seizure. Then can you follow your textbook absence seizure? नाम से लग रहा है एब्सेंस मतलब कुछ मिलेगा ही नहीं। दिस इज ऑल्सो नोन एज पेटिट माल। पेटिट का मतलब होता है छोटा, आपको याद है क्रोमोसोम? यस सर, इंटीग्रेटिंग। कोई भी क्रोमोसोम में 2 आर्म होते हैं,
एनी क्रोमोसोम दे आर हैविंग द 2 आर्म्स। यस, आपको याद है, एक को हम बोलते हैं पी आर्म, एक को हम कहते हैं क्यू आर्म। पी आर्म ये टर्म कुछ और नहीं है, ये है पेटिट आर्म। और क्यू आर्म, क्यू का कोई फुल फॉर्म नहीं है, अल्फाबेट में क्यू पी के बाद आता है, इसलिए ये टर्म लिया गया। पेटिट आर्म मीन्स स्मॉल आर्म। कहीं पर भी पेटिट अगर वर्ड यूज हुआ इसका मतलब होता है छोटा। तो दिस इज वेरी मेजर टाइप, पूरे बॉडी में अपियर होता है, इसलिए इसे हम ग्रैंड माल कहते हैं। ग्रैंड मीन्स बड़ा, जबकि ये छोटे टाइप का है, बॉडी में कोई सिम्टम नहीं आता, इसलिए इसको हम कहते हैं स्मॉल इपिलेप्सी, पेटिट माल इपिलेप्सी, माइनर इपिलेप्सी। ये बहुत ही कम 1 से 2 मिनट के लिए रहेगा, और जनरली ये एमसीक्यू है बेटा आपका, ये बच्चों में प्रेसिपिटेट होता है। सो मेनी एमसीक्यूज आर आस्क्ड फ्रॉम योर हैरिसन। कोई सिम्टम नहीं होते, कोई लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होता, पेशेंट गिरता नहीं है, पेशेंट जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में देखना चालू कर देगा, एक पॉइंट पर एक टक देखता रहेगा। ओके, कोई भी मस्कुलर कंपोनेंट, आपने देखा ग्रैंड माल एपिलेप्सी में जर्किंग हो रही थी, इसमें कोई जर्किंग नहीं होती। सिंपली एमसीक्यू आया हुआ है, हो सकता है कि उसमें जस्ट पलके झपके, बस पलके झपक रही है और आप बोलेंगे इसमें अटैक आ गया, पता भी नहीं चलेगा। सबसे ज्यादा जो निमहैंस में क्वेश्चन पूछा गया ईईजी में, आपको 3 साइकिल्स के स्पाइक्स मिलेंगे। यस, इन मेडिसिन पार्ट आई विल टेल यू द कंप्लीट ईईजी, ऑल्सो इन अवर फिजियोलॉजी चैप्टर ईईजी वी हैव सीन। ओके, तो जब आप इसमें देखेंगे तो अब नॉर्मल सिंक्रोनस डिस्चार्ज होंगे, और ईईजी में आपको 3 स्पाइक, 3 हर्ट्ज स्पाइक के वेव्स कंटिन्यूस मिलेंगे। ओके, सो यू विल सी 3 साइकिल्स पर सेकेंड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 hertz spikes are seen. This is our spike and wave pattern. Okay, और आप देखेंगे कि ये एब्सेंस सीजर एक दिन में कई बार प्रेसिपिटेट हो सकता है, 100 times a day. This is the word from your Harrison. It can precipitate 100 times in a day. और हैरिसन की कुछ लाइनें मैं आपको बता रहा हूँ। यस, क्योंकि ये बच्चा है, ये स्कूल जाता है, स्कूल टाइम में बैठा हुआ है, और 1 घंटे में ही उसे 10 बार प्रेसिपिटेट हो गया, तो क्लास में वो जो चीज़ें हो रही उसको ग्रैस्प नहीं कर पाएगा, और उस बच्चे को भी पता नहीं रहेगा कि उसे अटैक आ रहे हैं, ना तो सामने वाले को पता रहेगा। तो धीरे धीरे उसका स्कूल परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगा। तो दिस इज योर कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ द एब्सेंस सीजर। आई विल टीच यू, बट रिमेंबर ये बच्चों में ज़्यादा होता है। आई एम राइटिंग हियर द स्टोरी दैट इज इंपॉर्टेंट। Okay, absence seizure I am telling you from the Harrison. It is common in children. It is precipitated by the hyperventilation. MCQ, ज़्यादा सांस ली, ऑक्सीजन जाता है, तो ये प्रेसिपिटेट कर सकता है। ओके, एंड इट मे कम 100 times in a day, and there is no post-ictal confusion. MCQ, no post-ictal confusion, याद रखेंगे। ग्रैंड माल इपिलेप्सी होती है तो पेशेंट जब सो करके उठता है तो उसको पता रहता है बॉडी में दर्द होगा, वो डीप स्लीप से उठा रहेगा, उसको रहेगा कि अरे यार मेरे साथ कुछ हुआ था। दैट इज द इक्टल कन्फ्यूजन। ओके, पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन, वो डिसओरिएंटेड रहेगा। लेकिन इसमें अटैक आया और पेशेंट को पता ही नहीं रहेगा कि उसके साथ कुछ हुआ। ओके, सो नो पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन इज देयर, नो अवेयरनेस अबाउट द अटैक। सो स्कूल परफॉर्मेंस डिक्रीजेस, तो बच्चा धीरे धीरे स्कूल एक्टिविटी में कमजोर आपको देखने के लिए मिलेगा। पेशेंट के पेरेंट्स परेशान रहेंगे, टीचर परेशान रहेंगे। टीचर कहेगा कि आपके बच्चे का परफॉर्मेंस धीरे धीरे पुअर होते जा रहा है। पेरेंट्स जो है वो बच्चे को बहुत डांटते हैं, बहुत मारते हैं, लेकिन वो इंप्रूव नहीं कर पाता, क्योंकि बच्चे को भी नहीं पता कि उसके साथ कुछ एबनॉर्मल हो रहा है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बॉडी में कोई मूवमेंट है ही नहीं। ओके, अब वो साइकोथेरेपी के लिए या फिर एमडी मेडिसिन के पास गया तो उसे तो पता रहेगा कि ऐसे हो सकता है, तो वो साइकोथेरेपी के लिए भेजेगा। वहां पर उसका ईईजी करवा के देखा जाएगा। ईईजी हुआ और इसमें अगर मान लो 3 हर्ट्ज स्पाइक एंड वेव पैटर्न आ गया तो समझ जाइए उसे एब्सेंस सीजर है।
से यस पेटिट माल एपिलेप्सी है। इस पूरे फ्लो चार्ट में एक एक चीज आपकी एमसीक्यू, एवरी 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 फैक्ट इज एमसीक्यू फ्रॉम द फार्मा एज वेल एज फ्रॉम आवर मेडिसिन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट विच आई टोल्ड यू राइट नाउ। ओके बेटा, आप कोई सा भी एमसीक्यू बुक देखें, चाहे मेडिसिन का देखें चाहे फार्मा का देखें, आपको ये चीज मिलेगी। ओके नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड एटोनिक सीजर। एटोनिक सीजर क्या है? एक ऐसा सीजर जिसमें टोन का लॉस हो गया, बॉडी में से टोन चला गया। ओके मतलब पूरी बॉडी ढीली हो गई। गेटिंग द पॉइंट? दैट्स व्हाई इट इज एटोनिक सीजर। इसमें कोई भी मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलता। एक काइनेटिक एपिलेप्सी ऑल्सो यू कैन से, पूरे मसल्स जो है रिलैक्स हो जाते हैं और पेशेंट गिर जाता है। अटैक आया, सपोज मैं एटोनिक पेशेंट का, एटोनिक सीजर का पेशेंट हूँ, यस अटैक आया, पूरी बॉडी ढीली हो गई, धड़ से गिर गया। क्यों? क्योंकि मसल्स जो स्ट्रांग ही नहीं, तो मैं अपना पॉस्चर कंट्रोल कर ही नहीं कर सकता। यस मायोक्लोनिक सीजर, नाम से लग रहा है, मायो मीन्स मसल, क्लोनस मीन्स पेंडुलर जर्की मूवमेंट। तो इसमें क्या होता है? सिर्फ एक लिम्ब या फिर पूरे बॉडी में मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ओके बाकी पेशेंट नॉर्मल है, मैं होश में हूं, मैं देख रहा हूं अरे पूरी बॉडी हिल रही है, क्या हो रहा है मुझे, क्या हो रहा है। ओके सो जस्ट आई एम टेलिंग यू इन अ इजियर वे, दिस इज मायोक्लोनिक, लेकिन मैं अनकॉन्शियस नहीं हो रहा हूं। ओके देन कैन यू सी द इन्फेंटाइल स्पाज्म? यस ये बच्चों में देखने के लिए मिलेगा। ओके एक्चुअली ये एपिलेप्सी नहीं है, ये सिर्फ एक मसल स्पाज्म है, लेकिन स्टडी के लिए इसे यहां पर रखा गया है। धीरे धीरे बेबी जो है मेंटली डिसओरिएंटेड हो जाता है। ओके नाउ after this all there is our partial seizure. So now here you will get the description of the our partial seizure: atonic seizure, myoclonus seizure, infantile spasm, and here is our partial seizure. okay तो ये जो partial seizure वाला जो पार्ट है, can you see here, सिर्फ एक पार्ट में रहेगा एंड पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन्वॉल्व, सिंपल पार्शियल एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल। आई टोल्ड यू सिंपल पार्शियल मतलब पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस नहीं होगा। गेटिंग द पॉइंट? तो यू कैन से पेशेंट रिमेन्स कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ द अटैक, उसे पता रहेगा कि हाँ कुछ एबनॉर्मल चीजें हुई थी, और लगभग वैसी ही चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसके अलावा पिन प्रिकिंग, बॉडी में सुइयां चुभ रही ऐसा लगेगा, विजुअल एबनॉर्मलिटी, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, कुछ आवाजें सुनाई देगी, कुछ अंधेरा दिखाई देगा, इस तरीके की चीजें होती रहेगी। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, देयर इज लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस, सो यू कैन सी हियर ओके इंपेयरमेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और सीजर है, सिंपल पार्शियल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर सेकेंडरी जनरलाइज्ड। मतलब शुरुआत कैसे होगा? सिंपल पार्शियल सीजर की तरह, फिर कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, और फिर पूरे बॉडी में फैल गया। इसे हम क्या कह रहे हैं, धीरे धीरे ये प्रोग्रेस होता चला गया। ओके धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया। सो दिस ऑल आर द क्लासिफिकेशन विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ओके नाउ try to understand. I am going to tell you this all the description in a simple flow chart way from the Harrison, this all the things. Okay so in this way, how can you describe the seizure? How can you describe the seizure? Seizure classification, yes, see here, जनरलाइज्ड सीजर, पार्शियल सीजर, लेकिन इसके अलावा और भी टाइप्स हैं जो टर्म्स आपको सुनने के लिए मिलेंगे। so we are mentioning here, fine. So what are the different types of the seizure? First, our generalized seizure. Okay sir, what are the different types of the generalized seizure? I told you one by one. Yes, there is our first one was grand mal epilepsy. It is also known as generalized tonic clonic seizure. ओके इसमें टोन बढ़ता है, फिर क्लोनस आते हैं और सीजर की एक्टिविटी होती है। फाइन सर। सेकेंड,
what you can remember, that is our petit mal एपिलेप्सी, या फिर इसे हम कहते हैं एब्सेंस सीजर. ओके सर. नेक्स्ट, व्हाट यू कैन रिमेंबर अदर टाइप्स ऑफ द सीजर और ऑल्सो, जो हैरिसन में दिया हुआ है एटिपिकल सीजर, जिसमें सीजर के नॉर्मल फीचर्स नहीं एपियर होते. यस, एटिपिकल. एब्सेंस सीजर इज द बेटर वर्ड. एब्सेंस सीजर है लेकिन उसमें एटिपिकल फीचर रहते हैं. okay, you will see the other forms like tonic seizure. I am telling you from the medicine part also, इसमें टोन बढ़ जाता है. ऑल्सो देर इज वन मोर टाइप, सिर्फ क्लोनस आते हैं तो उसे हम कहते हैं क्लोनिक सीजर. ओके, ऑल्सो यू कैन सी द टाइप ऑफ द सीजर वेयर देर इज अ लॉस ऑफ द टोन ऑफ द बॉडी, इसलिए आप उसे कहेंगे एटोनिक सीजर. टोनिक सीजर अलग है, एटोनिक सीजर अलग है. And another one, that is our myoclonic seizure. Okay, so you can understand, you can get the point for the our yes myoclonic seizure, जिसमें group of the muscles का बस आपका involvement देखने के लिए मिलेगा. Okay, now see here the partial seizure, another type of the seizure. Just arranging this all the things. So now we are looking for the our partial seizure. yes, तो partial seizure को हम कुछ टाइप में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज आवर सिंपल पार्शियल सीजर, वी हैव सीन. इसके भी दो टाइप हैं, जिसमें सेंसरी सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं और एक जिसमें मोटर सिम्टम ज़्यादा आते हैं. सो यू कैन से सेंसरी सिंपल पार्शियल सीजर एंड मोटर सिंपल पार्शियल सीजर. एंड सेकेंड वन इज आवर कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, जिसमें पेशेंट जो है अनकॉन्शियस हो जाता है. इसके अलावा हमने देखा पार्शियल सीजर विथ सेकेंडरी जनरलाइजेशन. यस, यू कैन रिमेंबर द पार्शियल सीजर जो बॉडी के कुछ ही पार्ट में हो रहा है. सो यू कैन से पार्शियल सीजर विथ अवर सेकेंडरी जनरलाइजेशन. बॉडी के एक पार्ट से शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे पूरे बॉडी को इन्वॉल्व कर लिया, दैट इज अवर सिम्टम. ओके, इसके अलावा जब हम मेडिसिन में जाएंगे तो हम लर्न करेंगे 3 अवर मोर एडिशनल फीचर्स ऑफ पार्शियल सीजर. तो पार्शियल सीजर के कुछ स्पेशल फॉर्म भी आपको देखने के लिए मिलते हैं. So it is not important right now, just we are introducing this terminology so that you can get aware for the your medicine. Yes, there is a one Jacksonian march. तो ये भी एक पार्ट है इसका, जैक्सोनियन मार्च. इसके अलावा हम देखेंगे टोट्स पैरालिसिस. also we will observe the epilepsia. yes, partialis continua. Partialis continua, don't worry about this all, we will see in our medicine part. okay, and if it will be necessary for our pharma, we will look at that part. इसके अलावा कुछ और भी सीजर हैं जिसे किसी भी तरीके से क्लासिफाई नहीं किया जा सका है. सो दे आर जस्ट केप्ट अंडर द नेम ऑफ आवर अनक्लासिफाइड सीजर. अनक्लासिफाइड सीजर, गेटिंग द पॉइंट. इसमें नियोनेटल सीजर, यस, जो छोटे बच्चों में नियोनेट्स में होता है, नियोनेटल सीजर. और इसके साथ में इन्फेंट में प्रेसिपिटेट होने वाला इन्फेंटाइल सीजर. गेटिंग द पॉइंट. एंड ऑल्सो द फ्यू टर्म्स वी विल फेस इन आवर फार्मेकोलॉजी पार्ट, दैट epilepsy syndrome. yes, we will face the few epilepsy syndrome. जैसे जैसे ये वर्ड्स आएंगे हम देखते जाएंगे व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स. फर्स्ट, छोटे बच्चों में होता है, जुवेनाइल में होता है, दैट्स व्हाई वी विल से जुवेनाइल. उनके कुछ
पर्टिकुलर मसल ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, दैट्स व्हाई वी विल से मायोक्लोनिक इपिलेप्सी का एक पार्ट है, दैट्स व्हाई यू विल से इपिलेप्सी। ओके, इन शॉर्ट इट इज नोन एज अवर JME। यस, मेडिसिन में इसके ऊपर MCQ आते हैं। जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, also the few other syndromes like our Lennox, Gastot syndrome. Also we will see about the MTLE, yes, mesial temporal lobe epilepsy। ओके, दिस ऑल आर नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन अब जो टर्म हम लिखने जा रहे हैं इसे हमें जानना है, अलग से हम इसको स्टडी करेंगे। स्टेटस एपिलेप्टिकस, sudden and severe form of the epilepsy, that is the status epilepticus, getting the point? So these are the our different types of the epilepsy, but now try to understand classification। ये सारी चीजें अब पुरानी हो चुकी है। now what the our Harrison is saying, हैरिसन ने अब इसको और सिंप्लीफाई किया हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पुराना क्लासिफिकेशन है जो अब नहीं फॉलो करना है। दिस इज द अवर हैरिसन simplified here। okay, so based on the new 2017 international league against the epilepsy classification, so this is the latest classification। okay, new classification from the Harrison। I'm directly introducing the lines from the Harrison। तो बेटा अब इस तरीके से पढ़ो, क्योंकि कंपिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन हो चुका है, ये फॉलो करता है हर चीज को इंटीग्रेट करने के लिए, और ये एक अच्छा टेक्निक भी है, क्योंकि इससे किसी एक चीज को बार बार नहीं पढ़ना है, आपको उस चीज को एक बार पढ़ना है, रिवीजन करना है, और फिर हमारे क्लिनिकल एक्टिविटी में उसे रिवाइज करना है। ओके, सो दिस इज डिवाइडिंग ओनली द फोकल ऑनसेट, जनरलाइज्ड ऑनसेट। ओके, और इसके बाद में कुछ ऐसे सीजर जिसका ईटियोलॉजी अभी तक पता नहीं है, फाइन। और उसके बाद फोकल ऑनसेट को और भी इंपेयरमेंट ऑफ द आवर अवेयरनेस इसके बेसिस में डिस्क्राइब किया गया है। जनरलाइज ऑनसेट, इसको मोटर और नॉन मोटर में डिवाइड किया गया है। ओके, जितने भी अदर टाइप्स थे उसको एक कैटेगरी में रख दिया गया है, फाइन। अननोन ऑनसेट, जितने भी सिंड्रोम्स है, जितने भी अननोन है, उसको अलग कैटेगरी में रख दिया गया। तो इस तरीके से इसे सिंप्लीफाई किया गया है ताकि ट्रीटमेंट इजी हो सके, ट्रीटमेंट की स्ट्रेटजी इजी हो सके। सी हियर इट इज बेस्ड ऑन द न्यू 2017 इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट epilepsy classification of the seizure। okay, so here the reference is also given। okay sir, fine। now we are again coming to the our pharmacology part, anti-epileptic drugs classification। just see here our anti-epileptic drug classification। yes, it is describing our anti-epileptic drug, कैसे इसने इसे क्लासिफाई किया है और इसे हम किस तरीके से इजी करके याद कर सकते हैं। फिर हम इंडिविजुअल एक एक ड्रग को डिस्क्राइब करेंगे अगली क्लास से, बट राइट नाउ आवर जॉब टू रिमेंबर दिस क्लासिफिकेशन। नाउ वी आर स्टार्टिंग द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, हाउ कैन वी ट्रीट दिस एपिलेप्सी, कौन कौन सी दवाइयाँ यूज कर सकते हैं, कब कब, किस किस टाइप में कौन सी दवाई को आपको यूज करना है। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, सी हियर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, सी हियर बार्बिचुरेट, बार्बिचुरेट एक ग्रुप है, बार्बिचुरिक एसिड। सो इन दिस कैटेगरी द फिनोबार्बिटोन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आप याद कर सकते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस में ये क्लासिफिकेशन है। देन डीऑक्सी बार्बिचुरेट, बार्बिचुरेट में से आपने ऑक्सीजन ग्रुप को निकाल दिया, इसमें आता है प्राइमरी डॉन, प्राइमरी डॉन ऐसा डॉन जो बहुत मेन है, प्राइमरी डॉन। ओके, फिनो बार्बिटोन, बार्बीटोन, बार्बी नाम की डॉल आती है, उसका टोन आप देख रहे हैं तो आप उसे कह रहे हैं फिनो बार्बिटोन। ओके, यहाँ पर प्राइमरी डॉन, डॉन आप जानते हैं, उस डॉन वो ऐसा डॉन है जो सबसे प्राइमरी है। नाउ हाइडेंटोइन,
केमिकल बेसिस में, तो इसमें बेटा फेनिटोइन और फॉस्फेनिटोइन आता है। ये फेनिटोइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसमें फॉस्फोरिलेशन हो गया तो फॉस्फेनिटोइन हम कहेंगे। वैसे ही इम्यूनो स्टील बैन, इम्यूनो स्टील बैन, ओके, इसमें कौन कौन सी दवाइयां आ रही है, यू कैन रिमेंबर अवर सीईओ, यू कैन रिमेंबर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, समथिंग लाइक दैट, कार्बेमाजेपिन, ऑक्स कार्बाजेपिन, ऑक्स कार्बाजेपिन एंड एस्ली कार्बाजेपिन। ओके, कहने का मतलब सब में एक ही सरनेम है, यस, जेपिन जेपिन जेपिन, यू कैन रिमेंबर, फाइन। नाउ सी हियर सक्सिनामाइड, तो आप ये सक्सिनामाइड वाले पार्ट में देख सकते हैं इथोसक्सिमाइड आ रहा है। इसी तरीके से एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें वॉल्प्रोइक, वॉल्प्रोएट सोडियम और डाई वॉल्प्रोक्स आ रहा है। वॉल्प्रोइक एसिड को याद रखिए, डाई वॉल्प्रोक्स ऑटोमेटिकली बाद में याद हो जाएगा। ये एक ऑलराउंडर ड्रग है जो हर कैटेगरी में आपको देखने के लिए मिलेगा। देन नेक्स्ट इज और बेंजोडाइजेपिन, तो इसमें जेपाम 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 जेपाम, ओके, देखने के लिए मिलेगा, एक्सेप्ट दिस क्लोबाजैम, ओके, तो क्लोनाजेपाम, डायजेपाम, लोराजेपाम, ये दवाइयां आती हैं। फिनाइल ट्राइएजिन में इसमें लेमोट्राइजिन आएगा। ऑल्सो द न्यू ड्रग्स, इसका ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कैसे याद रखना है, टॉपिरामेड, लिवतिरासितम, जॉनिसामाइड, वाइगाबेट्रिन, तिगाबाइन, टैकोसामाइड। साइक्लिक गाबा एनालॉग में गाबापेंटिन एंड प्रीगाबालिन। अगर आपको ट्राइजेमानल न्यूरेल्जिया याद हो तो मैंने आपको बताया था कि नाउ डेज फॉर द ट्रीटमेंट of the our trigeminal neuralgia this gabapentin is successfully used, ये वही है। okay, so these all are the our different things, classification, antiepileptic drugs, yes, according to the, remember this is the classification according to the our केमिकल नेचर। कोई भी ड्रग आप पढ़ रहे तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए, एक इजी वे मैं आपको बता रहा हूं, यस, सी हियर ट्रिक with the our funny way, so try to understand। हमारे एक बहुत ही बढ़िया जासूसी के कैरेक्टर हैं शेरलॉक होम्स, व्हाट यू कैन डू, शेरलॉक होम्स एंड यस, उनके ऊपर काफ़ी सारी मूवी बनी हुई हो, बहुत सारे जासूसी सीरियल भी लिखे गए हैं, ओके, सो यू कैन गो विथ दिस वेरी फेमस मूवी जिसमें हमारे हीरो यस टोनी स्टार्क हैं, आयरन मैन ने इनका कैरेक्टर किया बहुत अच्छे तरीके से, ओके, सो दिस इज दवर शेरलॉक होम्स, फाइन। एंड ऑल्सो हमारे जो, आपको ये याद होगा ही, our another very good character, I am taking this pic, this is better clear, डॉक्टर स्ट्रेंज, उन्होंने भी इसका किरदार बहुत अच्छे से निभाया हुआ है, तो जस्ट enjoy the your study, okay? So we are going to look for this Sherlock Holmes trick, okay, so this is HD quality, so we are taking this one, fine, very nice movie, very nice character, very entertaining movie, yes, so what is our trick, our trick is, yes, Sherlock Holmes, ओके, आया, शेरलॉक होम्स आया किस पर, बीबीसी न्यूज, आपको पता होगा बीबीसी न्यूज चैनल, तो वो बीबीसी न्यूज चैनल पर आया, आई एम डूइंग दिस वन विद द येलो कलर, इज इट बेटर विजिबल, ओके फाइन, शेरलॉक होम्स आया बीबीसी न्यूज पर, क्यों आया, यस, इंटरव्यू देने, so this is our trick, fine, so what are the our different
drugs which you can remember. Okay, see here, S से आप याद रख सकते हैं सक्सिनिमाइड, ओके सर। H से आप याद रख सकते हैं हाइडेंटोइन, जिसमें फेनिटोइन ग्रुप आ रहा था, ओके सर। A से आप याद रख सकते हैं एलिफैटिक ड्रग्स, B से आप याद रख सकते हैं बेंजोडाइजेपिन, यस। B से आप याद रख सकते हैं बार्बिचूरेट्स, C से हम याद रख सकते हैं साइक्लिक गाबा ड्रग्स। N से न्यूज, N से हम याद रख सकते हैं न्यूयर ड्रग्स। फिर P से हम याद रख सकते हैं फिनाइल ट्राइजिन। नेक्स्ट इंटरव्यू, I से आप याद रख सकते हैं इमिनो स्टिल पेन। T से आप याद रख सकते हैं डी ऑक्सी, यस, कैन सी हियर अवर डी ऑक्सी बार्बिचूरेट। ये क्लासिफिकेशन है थोड़ा हेक्टिक, इन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये चीजें आपको याद होती चली जाएंगी। ओके, so this is your trick. Also from the next class we will read about the each and individual drug on the basis of the our mechanism of action. Thank you very much for today's class. Hope you all enjoyed. So now we are starting our live doubt discussion. Thank you.